यस स्टूडेंट्स, इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो? यू आर वेटिंग फॉर इनविटेशंस. Okay, chalo. In the last lecture, we have started procedures in PL/SQL. Okay, we have started procedure in PL/SQL. Okay, there is a small difference between procedure and subprograms. Function. Okay, there is a difference between procedure and function. Okay, what is a procedure? What is a function? मतलब क्या? We have written the set of instructions. मतलब we have written the subprograms. Okay, you can say the subprograms also. When we are writing that subprogram, so we can call that program. Okay, set of instructions. Okay, when we call that, then it performs a particular task. Okay, so that subprogram is divided into two: function and procedure. What is the difference between function and procedure? The function will return the single value. Okay, function when you return the single value. When you are make the function, so it will return something. Okay, it will return the values. It is used to compute and return the value. Functions are used to compute and return the value. And what is a procedure? So procedure is same as functions, but it does not return any value directly. Okay, वो कोई value directly return नहीं करेगा. That is the difference between function and procedure. Okay, in DBMS जैसे आप in C में जैसे आप function बनाते हो, same function you will make. Okay, same function you will make. Okay, and you will call that function. If you are making the procedure, अगर procedure बना रहे हो तो procedure कुछ return नहीं करेगा values directly. Okay, so where you, this is a syntax for creating the procedure. Okay, create you have to write or replace. Okay, आप उसको existing जो process है उसको replace भी कर सकते हो. Sorry, procedure जो है या तो function जो बनाया, you can replace also. मतलब you can change that. Then procedure, then write the procedure name and pass the parameters. Okay, जैसे आप if you are making the functions, आप function बनाते हो तो parameter pass करते हो. Okay, what are you doing? You are passing the parameters. For example, sum करके function बनाया, integer sum, तो bracket में you can pass the values integer a, integer b and integer c. Then within the function you are writing the code like c equals to a plus b, c equals to a plus b. Okay, आप वो code लिखते हो. ठीक है, then close the functions and return करके c करते हो. Okay, and close the bracket. So that is a function का structure है. सेम वैसे ही मतलब वो सी लैंग्वेज में है. ठीक है, नाउ वी विल डू इन द PL/SQL. द PL/SQL में थोड़ा सिंटैक्स उसका डिफरेंट है. ओके, बट लॉजिक तो सेम ही है. उसमें आपको you have to write begin end. Okay, within begin and end you have to write the procedure body or function body. Okay, these are the parameters. Okay, these are the parameters. ये this is a simple procedure उन्होंने बनाया. Okay, what is the procedure name? Greetings is the procedure name. Okay, create or replace procedure. This is a syntax. ये पूरा syntax है. Okay, this is a procedure name. Procedure का name बनाया greetings. As okay, as लिखा है, हमको भी कुछ सिलेक्ट नहीं करवाना है. ठीक है, जस्ट हमको प्रिंट करवाना है. देन वी हैव रिटन द बिगिन एंड बिगिन में हमने प्रिंट करने के लिए वी हैव रिटन हेलो वर्ल्ड. ओके, तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा. ओके, दिस इज क्रिएटिंग द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द प्रोसीजर. नाउ उसको हमको कॉल करना है. ठीक है, जैसे आप लोग फंक्शन कॉल करते थे सी में, C++ में, वैसे आपको प्रोसीजर को भी क्या करना है? कॉल करना है. तो उसके लिए यू हैव टू राइट एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स. आपको क्या लिखना है? एग्जीक्यूट ग्रीटिंग. ओके, एग्जीक्यूट ग्रीटिंग्स यू हैव टू राइट. ठीक है स्टूडेंट, 1 मिनट है, 1 मिनट. Okay, so you have to write execute. Okay, a stand alone procedure can be called in two ways. ठीक है, एक तो execute कीवर्ड से आप उसको कॉल कर सकते हो या calling the name of procedure from the PL/SQL block. Okay, तो सिंपली अभी याद रखो execute greetings आप लिखोगे तो procedure will call. Okay, अगर आपको another block में कॉल करना है तो you have to just write the name of the procedure. आपको procedure का क्या करना है? नेम लिखना है. Okay, greetings कहाँ पे? begin and end में. Okay, yes. Now how to delete के लिए आपको drop procedure greetings. Yes student, just remember the syntax. Okay, drop procedure greetings. Okay, now जो parameters मैंने आपको बताया कि you have to pass the parameters. Okay, parameters are optional. Okay, parameters are optional. तो जो parameters है, parameters के types उन्होंने दिया है, in out और in out. Okay, you can declare the variables. जो parameters आप pass करते हो, ठीक है, वो in type का होगा या तो out type का या तो both in and out. What is the meaning of in?
तो इन पैरामीटर लेट्स यू पास अ वैल्यू टू द सब प्रोग्राम। ओके, आपको वैल्यू पास करने देगा प्रोग्राम को। इट इज अ रीड ओनली पैरामीटर। ओके, inside this subprogram an in parameter act like constant. Okay, it cannot be assigned a value. You can pass a constant, literal, initialize variable or expression as an in parameter. ठीक है, आपको पैरामीटर्स पास करना है तो यू हैव टू राइट इन, आपको लिखना है। ओके, यू कैन आल्सो इनिशियलाइज इट टू डिफॉल्ट वैल्यू, आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, बट बाद में वो चेंज नहीं होगा। एक बार आपने जो उसको वैल्यू दे दिया, इट कैन नॉट बी चेंज। Okay, however, in that case, it is omitted from the subprogram call. Okay, it is a default mode of parameter passing. It is a default mode of parameter passing. ठीक है, and parameters are passed by reference. कैसे पास होगा parameters? reference through पास होगा। Okay, so this is for in. Okay, आपको प्रोग्राम में वैल्यू पास करना है। ठीक है, मतलब जो सब प्रोग्राम जो प्रोसीजर फंक्शंस बनाए, if you want to pass the value, you have to write the in. Okay, आपको in लिखना होगा। ठीक है, in लिखना होगा। And what is the out mode? क्या है? What is the out mode? The out parameter returns a value to the calling program. Okay, and out parameter returns a value to the calling program. यहाँ पे रिटर्न करेगा calling programs में वैल्यू। अगर आपको if you want to return the values, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू रिटर्न करवाना है तो आपको क्या लिखना होगा? out. Inside the sub program, an out parameter act like a variable. Okay, act like a variable. You can change its value and reference the value after assigning it. आप उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, you can change the values, out parameters. The actual parameter must be variable and it is passed by value. वो कैसे पास होगा? Passed by value. If you want to pass the parameters by reference, तो आपको in लिखना है। If you want to pass the in short, आपको ऐसे याद रखना है। If you want to pass parameters as a reference, तो आपको in लिखना है, and आपको through the मतलब by value पास करवाना, तो you have to write out. तो आपको क्या लिखना है? out लिखना है। ठीक है, and in and out करोगे तो an in and out parameter passes an initial value to the sub program and it returns an updated value to the caller program. Okay, what is calling program, what is call program, now you know. ठीक है, अभी ये लेवल पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। now in this stage you know what is calling program, what is call program. Okay, call कौन करता है? called function, called program किसको बोलते हैं? Okay, it can be assigned a value and the value can be read. Okay, the actual parameter corresponding to an in-out formal parameter must be a variable, not a constant or an expression. Okay, a formal parameter must be assigned a value. Okay, actual parameter is passed by value. Yes, what is formal parameter? What is actual parameter? कोई मुझे बताएगा? What is formal parameters and what is actual parameters? Formal parameters कौन से हैं? Actual parameters कौन से हैं? यहाँ पे नहीं, आप जैसे जो आपने नॉर्मली फंक्शन यूज किया सी लैंग्वेज में, जो अपने फंक्शन बनाया उसमें आपको था ओके के फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, बताओ मुझे, चलो फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है? मैं आपको PLSQL में नहीं पूछ रहा है, आस्किंग फॉर द सी, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो सी लैंग्वेज में कंसेप्ट है वही इसमें। तो what is formal parameters, what is actual parameters? कहाँ पे हम लोग पास करेंगे पैरामीटर्स? वो फॉर्मल होगा फंक्शन कॉल बनाते टाइम पे, फंक्शन को कॉल करते टाइम, और कहाँ पे हम लोग पास करेंगे तो वो एक्चुअल होगा एंड फॉर्मल होगा। यस यस, चलो हम लोगों ने फंक्शन यूज किया है। यू हैव डन द प्रोग्राम ऑफ द फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आपने फंक्शन बनाया हुआ है, प्रैक्टिस किया उसका। यस और नो? यस और नो स्टूडेंट्स? सी लैंग्वेज में फंक्शन कैसे बनाते हो, उसको कॉल करते हो, तो जब व्हेन यू आर मेकिंग दी फंक्शन, तो फंक्शन बनाते टाइम, ठीक है, जब आप फंक्शन बनाया तो वो फंक्शन में आपने जो वैल्यू पास किया है, सॉरी जो पैरामीटर्स पास किया है, उसको क्या, कौन से पैरामीटर्स बोलते हैं? जब आप वो फंक्शन बनाया, जब उसको आप कॉल कर रहे हो मेन प्रोग्राम्स में, ठीक है, तो जब कॉल करते हो तो कॉल करते टाइम आप जो पैरामीटर ब्रैकेट में पास करते हो वो कौन से पैरामीटर्स है? फॉर्मल पैरामीटर्स। यस मैम, मेक फंक्शन देन पास पैरामीटर फंक्शन नेम। ओके यस, ऐसे आप करते हो। यस, अभी किसने आंसर दिया? यस, कोई तो बोल रहा था फॉर्मल पैरामीटर्स। मैंने। ओके, और कौन से फॉर्मल पैरामीटर्स जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तब पास करते हैं? वो पैरामीटर्स के व्हेन वी आर कॉल, मतलब जब फंक्शन को कॉल करते हैं
मेन प्रोग्राम में उसमें पास किया वो फॉर्मल पैरामीटर्स, कौन सा फॉर्मल पैरामीटर? जो मैम कॉल करते हैं मेन प्रोग्राम में वो फॉर्मल पैरामीटर थे। एक हाँ ओके चलो, अरुण ने दिया है मैम एक्चुअल मींस वेरिएबल इनसाइड द फंक्शंस एंड फॉर्मल मींस while calling the functions. Yes, okay, so yes student, you should know all these things. Okay, function call are called the arguments or actual parameters. Okay, तो ये सारी चीजें यू हैव टू रिमेम्बर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको याद रखना है, बेसिक है, ठीक है। अगर मैं आपको डॉट नेट पढ़ाऊंगा एट द टाइम भी हमको फंक्शन बनाना है डॉट नेट में भी, तभी मैं आपको यही क्वेश्चंस पूछूंगी जो बेसिक है फंक्शंस का। फंक्शन का बेस कभी चेंज नहीं होगा, जो उसका कंसेप्ट है व्हाट इज फंक्शन, उसको मतलब ओनली सिंटेक्स चेंज होगा, ठीक है। पैरामीटर उसका जो फॉर्मल है वो फॉर्मली रहेगा, जो एक्चुअल है वो एक्चुअली रहेगा, ठीक है। जहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं उसको जहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स विल बी सेम, ओनली सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट चेंज मैं आपको पहले से बोलती आ रही हूँ। जो आप द सी लैंग्वेज इज योर बेस, ठीक है, सी लैंग्वेज आपका बेस है, अगर वो क्लियर है, ठीक है, देन यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। सी इज अ मेन फॉर यू, सी में जो भी कंसेप्ट है, एरे हो गया, ठीक है, फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, वेरिएबल हो गया, इफ वगैरह जो भी था, दैट इज द मेन थिंग। कहाँ पे कौन सा लूप यूज करना है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना है, दैट इज द मेन थिंग। अगर सी लैंग्वेज अच्छे से कर लिया ना, देन आप कोई भी लैंग्वेज समझ सकते हो। सी एंड देन उसके बाद सी प्लस प्लस, वाई बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी शार्प इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। तो सी शार्प, अगर आपको सी प्लस प्लस आ रहा है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दी सी प्लस प्लस, सी शार्प लैंग्वेज, ठीक है। तो एवरी सब्जेक्ट जो है दैट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। ऐसे प्रोग्रामिंग तो ऑलमोस्ट सब कनेक्टेड ही है एक दूसरे से, बेस पता होगा देन यू कैन डू। तो प्लीज जो कंसेप्ट है उसको भूलना नहीं है, ओके। ऐसे नहीं कि डीबीएमएस अभी हो गया तो यू विल फॉरगेट आफ्टर द एग्जाम, नो। डीबीएमएस के जो कंसेप्ट है यू हैव टू रिमेम्बर, why because in next last year we will do the connectivity, और ASP.NET का कनेक्टिविटी हम लोग हमारे डेटाबेस के साथ करेंगे, डेटाबेस को हम लोग हमारे .NET में यूज करेंगे। तो एट दैट टाइम आपको डेटाबेस जो भी हमने ये पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज नोट करते जाओ हर एक चीज से, ओके। एंड जो नोट्स बनाओगे वो आपको संभाल के रखना है लाइफ टाइम, ओके, बिकॉज वी आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो कभी भी कोई भी जरूरत पड़ जाती है नोट्स की, ओके। तो ऐसा एक अच्छे से नोट्स बनाओ और जो बना रहे हो उसको संभाल के रखो प्लीज। ऐसे नहीं कि सेमेस्टर खत्म हो गया दे दिया उसको हमने उसमें, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने भी सी के प्रोग्राम्स है, ठीक है, आपने जो सी के प्रोग्राम्स किया हुआ है बेसिक प्रोग्राम्स है, आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के, अगर सॉफ्ट कॉपी में तो प्रिंट आउट रख के संभाल के रखना है, ओके। आपको कभी भी कुछ भी काम आ जाता है, ठीक है। चलो, दिस इज वन एक स्मॉल प्रोग्राम दिया हुआ है, दिस प्रोग्राम फाइंड द मिनिमम ऑफ 2 वैल्यूज, ये जो प्रोग्राम है, ओके, दिस इज फाइंड द मिनिमम ऑफ 2 वैल्यूज, हियर द प्रोसीजर टेक 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर में 2 नंबर्स पास करें यूजिंग द इन मोड, कौन से मोड से, इन मोड से, एंड रिटर्न्स देम मिनिमम यूजिंग आउट पैरामीटर्स, ठीक है। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब क्या, सॉरी स्टैंड अलोन प्रोसीजर मतलब क्या, वी कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, ओके। यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर में वी आर पासिंग टू नंबर्स यूजिंग द इन कीवर्ड्स हम लोग पास करवा रहे हैं, एंड आउट पैरामीटर से उसको हम लोग क्या करें, रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इन एंड आउट पैरामीटर मतलब हाउ टू पास द वैल्यू टू द प्रोसीजर वो आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर द वेरिएबल इनसाइड द डिक्लेरेशन सेक्शन, okay, this is a declared section, we are doing the program in PL/SQL, तो syntax PL/SQL का ही है, okay। तो A number, B second variable, C third variable, okay, then procedure, okay, then procedure, okay, then find minimum is the name of the procedure, okay, find minimum is the name of the procedure, open the bracket, एक variable pass किया है, in पैरामीटर उसको डिक्लेयर किया है, कौन सा पैरामीटर, मोड, दिस इज अ मोड ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, ये मोड है वेरिएबल, यस, फर्स्ट वेरिएबल देन डेटा टाइप, ओके। PL/SQL का वही देखा ना हमने अरुण, ओके, फर्स्ट वेरिएबल देन डेटा टाइप, दिस इज अ सिंटैक्स, PL/SQL में वही सिंटैक्स है, हम लोगों ने पढ़ा PL/SQL आगे, पहले मैंने आपको थियरी पढ़वाया था, ओके, उसमें वैसे ही था ना, दिस इज अ सिंटैक्स, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ वेरिएबल, ओके, देन डेटा टाइप। सी लैंग्वेज में हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं देन वेरिएबल लिखते हैं, बट इसमें उल्टा है,
ओके, ये आपको याद रखना है। आई विल आस्क इन द एमसीक्यू जो फॉलोइंग उसमें से कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है, तो डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या सिंटैक्स है। ओके, तो आपको याद रखना है PL SQL में ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द वेरिएबल नेम देन राइट द डेटा टाइप। Okay, variable name and write the type. You can also specify the size also, but it is optional. आप size भी दे सकते हो, ठीक है, but it is optional, ये compulsory नहीं है इसमें size देना, ठीक है। Okay, तो प्रोसीजर में x एक वेरिएबल है, उसको in वैल्यू दिया है, सॉरी इन मोड दिया है, इट इज अ नंबर टाइप, y इज अ वेरिएबल दैट इज अ नंबर टाइप, उसका मोड क्या है, दिस इज अ मोड इन। ओके, मतलब वी कैन पास द वैल्यूज। ओके, एंड z जो है, ओके, दैट इज यूज्ड फॉर आउटपुट, इसके लिए हमने उसको कौन सा मोड दिया है, आउट। ओके, आउट मोड, उसको हम लोग रिटर्न करवाएंगे, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो नंबर टाइप। ओके, इज अ कीवर्ड, ओके, सिंटैक्स में है वो, आपको लिखना है इज। देन प्रोसीजर आपने उसको डिक्लेयर किया ना, उसका लॉजिक यू हैव टू राइट, आपको लॉजिक लिखना है, तो लॉजिक आप लोग बिगिन में लिखोगे, ठीक है। तो इफ x लेस देन y then z equals to x as z equals to y and if, ओके, अगर कंडीशन दिया है x लेस देन y है तो z में क्या हो जाना चाहिए, x, एल्स वाइज z में क्या स्टोर करवाना है, y स्टोर करवाना है, ठीक है। तो दिस इज अवर प्रोसीजर, ये हमारा क्या है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। दिस इज क्या है, दिस इज अवर प्रोसीजर, ओके, दिस इज अवर प्रोसीजर। नाउ ये जो प्रोसीजर हमने बनाया फाइंड मिनिमम, वो प्रोसीजर को हम लोग क्या करें, और कोई सेक्शन में कॉल करवा रहे हैं, और कोई सेक्शन में वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, ठीक है। तो उसको कैसे दिया है, सी a equals to 23, b equals to 45, ओके, b equals to 45, फाइंड मिनिमम a b and c, ओके। तो फाइंड मिनिमम इज अ प्रोसीजर, फाइंड मिनिमम क्या है, प्रोसीजर है, उसमें हमने वी हैव पासिंग 3 वेरिएबल्स x y and z, ठीक है। तो उसको हमने इससे रिप्लेस किया a b and c, ओके, and dbms dot output dot line minimum of 23 and 45, ओके, वैल्यू ऑलरेडी हमने उसको दे दिया है, ठीक है। तो जो आंसर होगा दैट विल बी प्रिंटेड, व्हाई, बिकॉज जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन जब ये लाइन पे एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर ये कंपाइल करेगा, देन वो देखेगा फाइंड मिन में क्या है, तो ये लॉजिक है, तो जो लॉजिक होगा दैट विल बी प्रिंटेड एज आउटपुट, ओके, सेम थिंग है, जस्ट सिंटैक्स अलग है, ओके। So what will be the output, 23, okay, yes। Now second is this procedure compute the square value of pass value, ठीक है, जो हम लोग वैल्यू पास करें उसका स्क्वायर फाउंड करें। This example show how we can use the same parameter to accept the value then and then return a result, okay, wait, yes स्टूडेंट, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा, यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है हमारे बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन का वर्किंग हो रहा है, मे बी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा आपको, यस। स्क्वायर फाइंड करना है हमको, तो क्या किया इन लोगों ने, इसे डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रोसीजर बनाया, नेम दे दिया प्रोसीजर को, स्क्वायर नंबर, ओके, एक्स इन एंड आउट, ओके, एक वेरिएबल को ही दोनों डिक्लेयर किया, मतलब एक्स का हम लोग वैल्यू देंगे और एक्स ही रिटर्न करवाएंगे, ओके। तो आप इन एंड आउट मोड दोनों साथ में डिक्लेयर कर सकते हो, ओनली यू हैव टू डिस्प्ले पास द वैल्यूज, तो वैल्यू पास करवाने के यू विल राइट द इन, जिसको रिटर्न करवाना है उसके लिए आप क्या मोड डिफाइन करोगे, आउट मोड, ओके। बट यहाँ पे क्या है, x जो है हम लोग x का ही वैल्यू पास कराएंगे, वी विल रिटर्न द x, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल को हमने पास किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x को कौन सा मोड दे दिया, दोनों मोड, इन एंड आउट, तो यू कैन पास द वैल्यू ऑफ, यू कैन रिटर्न द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे x इन एंड आउट, ओके, इज बिगिन, दिस इज अ प्रोसीजर का सिंटैक्स, उसमें हमने लॉजिक लिखा, स्क्वायर नम फंक्शन क्या करेगा, व्हाट इट विल बी डन, तो x इक्वल्स टू x इनटू x, इट विल बी काउंट, ठीक है, वो क्या काउंट करके देगा, x इनटू x, जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे उसको काउंट करेगा, कहाँ पे स्टोर करेगा, x में स्टोर करेगा, ठीक है। तो देन ये बनाया प्रोसीजर हमने, उसको कॉल किया, नेक्स्ट सेक्शन में बिगिन नेक्स्ट है सब उस प्रोग्राम है, यू कैन से a इक्वल्स टू 23, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, ठीक है, 23 दिया है, स्क्वायर नंबर फंक्शन कॉल किया, उसमें a पास किया, तो a का वैल्यू 23 है, तो 23 का स्क्वायर ऑफ 23 का जो भी है दैट विल बी रिटर्न, तो ये हो गया, ओके। तो दिस इज आपका प्रोसीजर, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी दी फंक्शंस, तो कुछ ज्यादा सिलेबस अभी है नहीं, ओके, ओनली 2 to 3 टॉपिक्स बाकी है दैट आई विल कवर, सो योर सिलेबस विल बी कंप्लीट। तो यूनिट 5 में यू हैव टू रिमेंबर अबाउट व्हाट इज PL/SQL, what is the use of PL/SQL, where we run the program of PL/SQL, okay,
देन डेटा टाइप उसका बेसिक सिंटैक्स PL/SQL का, ओके। देन डेलिमिटर्स क्या है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। डेलिमिटर्स के बाद हम लोगों ने इफ कंडीशंस, लूप, व्हाइल लूप, ओके, उसका सिंटैक्स यू हैव टू रिमेम्बर, मतलब कंडीशंस एंड लूप्स, ओके, एंड स्विच स्टेटमेंट, वो आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट है कर्सर, व्हाट इज कर्सर, टाइप्स ऑफ कर्सर्स एंड प्रोसीजर एंड फंक्शंस, एंड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, ओके। तो एक वन टॉपिक प्रोसीजर एंड फंक्शन है, that we will cover, and one more topic we will cover, that is triggers, okay, triggers in DBMS, that is important है, वो यूनिट 3 या तो 4 का है जो हमारा बाकी था, that we will cover। तो फंक्शन एंड फंक्शन इन PL/SQL एंड ट्रिगर्स वी विल लर्न, ओके। तो इतना होने के बाद अब जो सिलेबस है, सिलेबस विल बी कंप्लीट, ठीक है। तो आई थिंक और 1 या 2 लेक्चर्स वी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग अवर सिलेबस, तो हमारा सिलेबस जो है दैट विल बी कंप्लीटेड, ओके। एवरी टॉपिक वी हैव कवर्ड, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द रिवीजन, ओके। नेक्स्ट वीक से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, ओके। अदरवाइज हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, बिकॉज यूनिट वाइज हम लोगों ने यूनिट 1 एंड 2 तो हमने काफी टाइम वी हैव रिवाइज्ड, ओके, 4 to 5 टाइम्स वी हैव रिवाइज्ड यूनिट 1 एंड 4। डेटा टाइप, सॉरी, व्हाट इज डेटाबेस, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो काफी टाइम हम लोगों ने रिवाइज किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो MCQ सॉल्व करेंगे दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट 5। यूनिट 5 का पहले MCQ सॉल्व करेंगे, देन यूनिट 4, 3, 2, 1, वैसे, बिकॉज यूनिट 1 एंड 2 यू हैव प्रैक्टिस ऑलरेडी, ओके, फॉर दी आपका इंटरनल एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस किया था, यूनिट टेस्ट भी हम लोगों ने कवर किया था, तो उसके लिए ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। वी रिक्वायर्ड द रिवीजन फॉर यूनिट 5, 4, ओके। तो क्योंकि 4 का जो है ट्रांजैक्शन एंड उसका प्रोटोकॉल्स वगैरह दैट इज इंपॉर्टेंट है, तो वो MCQ वी विल सॉल्व मंडे से, क्लियर। अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो यू कैन आस्क मी, वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। अगर टॉपिक्स में डाउट नहीं है तो वी विल सॉल्व द MCQ फ्रॉम द यूनिट 5, बट आपको उसके लिए थोड़ा पढ़ के आना होगा, ओके, क्योंकि हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको ही देना है, आंसर आपको ही देना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आंसर मत देना, थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो सेंसिबल आंसर दे पाओगे, ठीक है। सरफराज सेमेस्टर 4 में PL/SQL नहीं है, ओके, आई थिंक आपने मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा था, बट सेमेस्टर 4 में PL/SQL नहीं है, ठीक है। सेमेस्टर 4 में नहीं है, जस्ट PL/SQL ये आपको दिया हुआ है एज अ यूनिट 5 इन दी DBMS में, बाकी PL/SQL करके आपको सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, वी विल यूज दिस DBMS का जो कंसेप्ट है देन इन ASP.NET में हम लोग कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, बट स्पेशली आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है PL/SQL करके। यस सिद्दीकी, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर सकते हो सिद्दीकी तारिक, बट अभी MCQ है आपका एग्जाम है ना, तो आपको यू हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स। आपका अभी जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 15 अक्टूबर से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है ना आपका एग्जाम, तो इट विल बी ऑन, 14 हाँ 14, तो इट विल बी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपका एग्जाम है तो आपका वो MCQ ही है, तो आपको MCQ सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर, मतलब लास्ट ईयर के आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लोगे आप, थियरी तो है नहीं पेपर, ओके। इसीलिए वी विल डू दी MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। आपका MCQ का जो जैसे एग्जाम में आने वाला MCQ वैसे टाइप्स के हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर सिद्दीकी तारिक। बिकॉज MCQ में यू हैव टू रीड ऑल दी थिंग्स, आपको हर एक चीज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन MCQ में ऑप्शंस वाला होगा, आपको 1 क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस आर देयर, तो यू हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शंस। तो आपको MCQ टाइप एग्जाम है इसमें, तो इसीलिए आपको हर एक चीज पढ़ना होगा, ठीक है। देन आई कैन आस्क व्हाट इज एक्टिव सेट, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्टिव सेट, द सेट ऑफ रोज द कर्सर हो रिफर्ड टू एज एक्टिव सेट, ठीक है। तो या तो मैंने डेफिनेशन दिया होगा, नीचे बोला होगा व्हाट इज दिस, ऐसे, मतलब आई कैन आस्क द क्वेश्चन एनी मैनर, ओके। तो प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, अभी हमारे पास टाइम है, काफी टाइम है इन दिस वीक, थर्सडे एंड फ्राइडे, ओके। टुमारो वी विल कवर द फंक्शन, और उसके बाद ट्रिगर्स हम लोग ले लेंगे, तो ट्रिगर्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड यस अलजेब्रा का नोट्स मुझे आपको देना है, दैट हाँ मुझे याद है, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी नोट आपको, तो पूरा 30 तक हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कमांड्स प्लीज रीड करो, जो भी कमांड्स मैंने आपको लिखने के लिए दिया है, प्लीज रीड दैट कमांड्स। हाँ कर्सर का भी मैंने आपको दे दिया है आई थिंक,
ठीक है, मैं चेक करती हूँ, आई थिंक आई हैव पोस्टेड, अगर नहीं है तो मैं अगेन दे देती हूँ कल्चर का भी, ठीक है, तो आप उसको रीड कर पाओगे। क्लियर? ओके चलो, नाउ मैं आई एंड दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, ma'am. ओके, प्लीज स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पढ़ना स्टार्ट करो, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम बट एज अ, आपको सब्जेक्ट काम ही आने वाला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डीबीएमएस। ओके, मेन सब्जेक्ट है, तो एज अ नॉलेज के लिए भी आपको पढ़ना ही है। ओके, ऐसा नहीं कि ओनली पास कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसा था, चलो थियरी है, पास हो गया, तो आपको उसका कोई कंसेप्ट आप नहीं थोड़ा याद रखोगे तो चलेगा, बट डीबीएमएस हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, दैट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ओके चलो बाय।